Good morning, student. Today we will start a new topic that is related to the concentration of solution. And the first topic of today is strength of solution. Strength. First topic is strength. Strength. Strength generally grams of solute present in per liter of solution. 1 लीटर सोल्यूशन में सोलूट के जितने भी ग्राम्स होते हैं उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ग्राम ऑफ सोलूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, WB अपॉन V इफ volume in ml, then we multiply with 1000. So it is the general formula to calculate the strength of a solution. इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट इज ग्राम पर लीटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ 5 ग्राम ऑफ NaOH present in 250 ml of solution, find its strength। तो स्ट्रेंथ कैसे काउंट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, WV अपॉन V इन ml इंटू 1000। WV की जगह पुट करेंगे 5 ग्राम अपॉन V 250 into 1000, so this is 20 ग्राम पर लीटर। तो इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 20 ग्राम पर लीटर। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी, बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। Relation between molarity and strength। तो strength इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू मोलर मास। अगर हमें किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता करना हो और मोलरिटी हमें गिवन हो तो उसके मोलर मास से क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ। या स्ट्रेंथ गिवन हो, मोलरिटी निकालना हो तो फिर क्या कर सकते हैं, उसके स्ट्रेंथ को डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मास से। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में स्ट्रेंथ हमारी कितनी थी, 20, और NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल। तो इसकी मोलरिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलरिटी इक्वल टू क्या हो सकता है फॉर्मूला, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। स्ट्रेंथ कितनी थी, 20 अपॉन 40, 1/2, 0.5 मोलर। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी रहेगी, 0.5, और स्ट्रेंथ कितनी होगी, 20। तो ये एक सिंपल जनरल रिलेशन है किसके बीच में, स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। Mole fraction, it is represented at and it is pronounced as chi। Mole fraction actually the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of solution। Suppose a binary solution having one component A and another component B, and its mole represented at Na and its mole represented at Nb. So the mole fraction of chi A is equal to number of moles of that component, that is Na upon total moles of solution, Na plus Nb। Similarly chi B is equal to Nb over Na plus Np। So
It is the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of solution. And the sum of mole fraction is 1 always. Chi A plus chi B plus any terms always equal to 1. कैसे होगा अभी प्रूव करते हैं. chi A के लिए क्या पुट कर लेंगे, Na ओवर Na प्लस Nb प्लस Nb ओवर में Na प्लस Nb. इनका एलसीएम कितना होगा, Na प्लस Nb, फिर ये Na प्लस Nb कैंसिल मतलब 1. So the sum of mole fraction is always 1 and its unit no unit of mole fraction, because both terms contain same terms, mole cancel out, and there is no unit of a constant terms or constant quantity. So take one example to calculate the mole fraction of solution. Here calculate mole fraction of ethylene glycol containing 20% W/W solution of ethylene glycol. अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन की क्या रखिए 20% W/W. इट मीन्स हियर WB इक्वल टू 20 ग्राम एंड WA इक्वल टू 80 ग्राम, जो हमने प्रीवियस क्लास में कर रखा है. उसके बाद ये सॉल्यूशन कौन सा है, इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2. So the molecular formula of this is 12 into 2 plus 1 into 6 plus 16 into 2, that is 62. So here the molar mass of solute is 62 gram per mole, and here the solvent is water. That's molecular mass is 18 gram per mole. So first of all we calculate moles of each component, and after that we will calculate the mole fraction of individual terms. So here Na equal to WA अपॉन Ma. WA कितना हमारा 80 अपॉन 18, that is 4.4. NB WB upon MB, that is 20 upon 62, 0.32 something. So mole fraction of chi B equal to NV over में Na plus NV. Here NV is 0.32, 4.4 plus 0.32. अब इनको कैलकुलेट करने पे जो आएगा वही मोल फ्रैक्शन किसका होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल. और सपोज कर लो हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, वाटर का, तो क्या करेंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. सो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज पार्ट्स पर मिलियन, एंड इट इज द लास्ट टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. So last topic is parts per million which is represented ppm. कभी कभी क्वेश्चन आता है ppm का फुल फॉर्म लिखो, क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन. एंड दिस टर्म जनरली यूज्ड टू एक्सप्रेस a very small amount of solute in a very large amount of solvent or solution. ये भी क्वेश्चन आता है कि पीपीएम का यूज हम कब करते हैं, तो जब स्मॉल अमाउंट को जब लार्ज अमाउंट में कैलकुलेट करना हो तो हम जनरली किसका यूज करते हैं, पीपीएम. और इसका फॉर्मूला क्या होता है जनरली, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, बिकॉज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶. So क्वेश्चन जनरली क्या आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम,
where ppm is used. So ppm is used to express a very small amount of solute in a very large quantity of solution. Okay, so for today it's enough. We will meet next class with the next topic, and for today, thank you.